Okay. Still audible to everyone? Yes, sir. Okay. Okay. Now, am I audible? Okay. Okay. Let's start then. Okay. So we are doing previous year question paper today, and obviously, someone has asked for bolted connections. That for bolt portion we will do that tomorrow. First, today we will do previous year some question answer from previous year. Okay. Basically, we will doing numericals from previous year question paper. Lies at 18.5 and from the kilogram from the heel of the angle. Okay, so this is the question where we have to connect a 60 mm by 60 mm by 10 mm angle to a gusset plate, and this angle has to carry a load of 150 kilonewton along its centroid. Okay. Another information we will given is that the centroidal axis lies at 18.5 mm from the heel of the angle. Okay. So first, let us draw an angle which is connected to a gusset. Okay, let me draw a gusset plate first. So why I draw so much, because I want you to understand all the aspects of the calculation. I don't want anyone to just guess if you are about the calculation. I just want all of you to understand surely what is happening. So what's one life and the other life of here is again another question. We will consider here. So the gusset plate we are considering. Obviously, the gusset plate will have its own thickness that doesn't concern us. Okay, that is why the thickness of gusset plate is not given. Okay, so what we will be doing, this is our angle.
This is connected to the gusset plate in this manner, and we are asked to provide some welding at its various sites. Okay, so whenever we are considering at various sites, we are considering welding at this position, welding at this position. So let me draw completely, and welding at this position. Okay, I think you understand it properly. Okay, but the problem lies whenever we are considering such an angle, because the centroidal axis, okay, if you see a angle section is not a symmetric section. That is why its centroidal axis is not at the center of this distance. Okay, first let me show you what is the distances, because it is said that it is a 60 by 60 by 10 mm section. So this length of this angle, okay, this is 60 mm. Similarly, if we consider this portion, this is also 60 mm. Okay, and the thickness, if you consider the thickness is 10 mm. Okay, whenever we are considering the centroidal line, okay, centroidal line is considered where it is say the centroidal axis lies at 18.5 mm from the heel of the angle. So this point is called the heel of the angle. So this is the heel of the angle. Okay. So if you are considering the centroidal axis will be lying at a distance somewhere here. Okay, let me draw it with another line. Okay, centroidal axis will lie somewhere here. Okay, you will not see this, and this distance is given that it is 18.5. Okay, this is 18.5. Okay, so I am drawing the centroidal axis here. Okay, so this distance from here to here, this is 18.5. Again, you know this thing, from this point to this point, this is 60 mm. Everyone has understood? Okay. So the load that is applying, that will be applying on this tie bar will be on this axis. So whatever load we are considering, 150 kilonewton. Okay, this is 150 kilonewton. So 150 kilonewton is applied here. So the aim is to provide such a welding at this position so that our center of the welded section, center of the welding also lies at this point only, so that no eccentricity comes into this connection. Am I clear to everyone? Okay, so let us start the numerical. We have already done. So whatever I am showing here, I am showing the full length welding, but in actual case, we will not have the full length welding. Okay, this length will not have, this portion we will not consider for full length. Okay, so we will have to reduce a length, and that length we have to calculate. First, we have to consider in this type of question, first you have to find out the size of welding. Okay, so let us find out the size of welding, and size of welding is considered from minimum and maximum value of the welding. Okay. Okay. So first, let me write down it here. 150 mm, not 151, 150. Okay, sorry, this is kilonewton. This should be kilonewton. Thank you. It should be kilonewton. Okay, not mm. This is kilonewton. This is the load there. And here, at the same line, we have to provide the support. So first, let us find out the size of welding. Step one, you will be find out the minimum size of welding. So minimum size of welding depends upon the thickness of the member.
and our member has a thickness of 10 mm. Okay, so I have already showed you in a table which shows the minimum sizes of the welding. Okay, so from that table we can say up to 10 mm we have to provide a minimum size of 3 mm. Okay, for plate thickness up to 10 mm as minimum is equal to 3 mm. 3 mm is the size of welding. Okay. Next, we will be considering step 2, where we will find out the maximum size of welding. That means we will be find out as max. Okay. So what will be the S max value? So you know for ठीक है तो S max का वैल्यू जो होगा वो डिपेंड करेगा हमारा फिर से मेंबर के साइज के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे दो चीज को कंसीडर करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेंबर का जो कनेक्शन है वो स्क्वायर एज है और कहाँ पे राउंडेड एज है। तो इस ड्राइंग को अगर आप देखोगे तो ये एंड में देखिए इस पोर्शन का जो कनेक्शन होगा वो राउंडेड एज है, राउंडेड एज। और यहाँ पे इन दोनों पोर्शन में जो वेल्डिंग होगा वो एज जो होगा वो होगा स्क्वायर एज। तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन है। तो पहले हम स्क्वायर एज के लिए कंसीडर कर लेते हैं। और स्क्वायर एज for square edge as maximum is the thickness minus 1.5. Okay, thickness is 10 minus 1.5. You will get a value of 8.5 mm. Again, for rounded edge, S max का वैल्यू होगा ये होता है हमारा हमें कितना कंसीडर करना पड़ेगा, मिनिमम साइज को हमें इसके लिए कंसीडर करना पड़ेगा 3/4 ऑफ द नॉमिनल थिकनेस, 3/4 ऑफ 10 mm. ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ 10 mm. 7.5. तो जो भी साइज कंसीडर करेंगे वो उसको 3 से ज्यादा होना पड़ेगा, 8.5 एंड 7.5 से कम होना पड़ेगा। तो हम कंसीडर करेंगे 7 mm, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना मैक्सिमम थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो हम इस चीज को लिख देते हैं। सो लेट अस adopt a welding size 7 mm. तो 7 mm 7.5 और 8.5 से छोटा है और 3 mm से बड़ा है। ओके, तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ वेल्ड। अब साइज ऑफ वेल्ड मिलने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेल्ड का जो हमारा थ्रोट थिकनेस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, देयरफॉर थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस जनरली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, T इज इक्वल टू 0.7 ऑफ जो हमारा साइज होता है, साइज ऑफ वेल्ड। ओके, तो अगर हम 0.7 को कंसीडर करेंगे 0.7 into 7, okay, so we will get 4.9 mm throat thickness. Okay, this will be our throat thickness. In next step we will find out the strength. Okay, so first we will find out the effective length required. Okay, so next step, step number 3,
Step 3, finding out the effective length for the well. Effective length required for well. ओके, तो 150 किलो न्यूटन को कैरी करना है और हमें उसके लिए कितना लेंथ चाहिए वो हमें कैलकुलेशन करना है। जनरली किस तरह से कंसीडर करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वेल इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल और उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ वेल, जिसको हम पी क्यू से डिनोट करते हैं। फिलेट वेल के लिए ये पी क्यू वैल्यू हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ, हमें जितना लोड हमें सपोर्ट करना है वो हमारा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम 8.5 भी है, मैक्सिमम 7.5 भी है। ठीक है, मैक्सिमम 8.5 भी है, मैक्सिमम 7.5 भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर हम 8 ले लेते हैं तो 7.5 मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा ना, तो दैट इज व्हाई हमें ये वैल्यू को कंसीडर करने पर हमें 7 कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि दोनों के लिए ही ये सेटिस्फाई हो। ओके, तो P का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आएगा। इफेक्टिव एरिया किस तरह से आता है, इफेक्टिव लेंथ जो हमें कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड लेंथ बोलेंगे, इनटू थ्रोट थिकनेस। ओके, थ्रोट थिकनेस एंड PQ, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे सारा का सारा वैल्यू डालना है अभी। इंटू 10⁻³, इफेक्टिव लेंथ हमें मालूम नहीं है। ओके, थ्रोट थिकनेस कितना कंसिडर किया हमने, 4.9, एंड PQ का वैल्यू हमेशा 108 MPa ही होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से कंसीडर करेंगे तो हमारा जो लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए कोई मुझे। ओके, तो लेंथ निकल के आएगा, हाँ 283.44, वेरी गुड, 283.44। स्टूडेंट सभी कीजिए ये कैलकुलेशन, मुझे अच्छा लगेगा अगर सभी करोगे। 44 mm, इतना लेंथ का वैल्यू हमें प्रोवाइड करना है। ओके, तो अब ये जो टोटल लेंथ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो ड्राइंग हम देख रहे हैं, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। ओके, लेकिन हमें ये लेंथ और ये लेंथ करेक्टली मालूम नहीं है, यहाँ पे 60 होगा वो हमें मालूम है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को मैं बोलूंगा x1 और इस लेंथ को मैं बोलूंगा x2। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ में प्रोवाइड नहीं करने वाला। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ, मैं इस तरह से वेल्डिंग को प्रोवाइड करूंगा, इस जगह पे वेल्डिंग को फुल प्रोवाइड करूंगा, इस जगह पे वेल्डिंग को भी हम फुल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग को इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वेल्डिंग का ये जस्ट इस वेल्डिंग का सीजी ये लाइन पे आ जाए। ओके, इसी के लिए हमारा ये जो लेंथ होगा सब अलग अलग होगा, हमें मालूम नहीं होगा कि एक्चुअल लेंथ कितना कितना होगा। तो ठीक है, तो इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज आवर x1, एंड इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे, दिस इज आवर x2। तो जो हमारा टोटल लेंथ होना चाहिए, समझ, लेंथ हमें होना चाहिए 283.55, जिसको हम एक्चुअल में कंसीडर करेंगे, हमें 285 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो 285 mm को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई हम क्या करेंगे अभी, therefore द लेंथ ऑफ well 285 is equal to x1 plus 60 plus x2, इस तरह से होगा। तो therefore x1 and x2 is equal to 225 हो जाएगा। ओके, तो ये लेंथ हमें इस तरह से मिल जाता है, x1 and x2 225 mm हो जाएगा। अब हमें x1 and x2 को कैलकुलेट करना है। अब x1 and x2 को कैलकुलेट करने से पहले हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लेंथ को इस तरह से चूज करेंगे, x1 and x2 का लेंथ इस तरह से चूज करेंगे कि इसका CG इस लाइन पे आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो लोड होगा उस लोड को हम हर एक वेल्ड के लिए कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सभी को ध्यान से देखना चाहिए, एक चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ये वेल जो है वो अपना ये पॉइंट से लोड को सपोर्ट करेगा,
फिर जो वेल्ड इस लेंथ पे है, पूरा 60 mm लेंथ पे है, वो अपना सेंटर डिस्टेंस से होके लेंथ को सपोर्ट करेगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। एग्जैक्टली डिस्टेंस पे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये यहाँ से सपोर्ट करेगा। और सिमिलरली हमारा दूसरा ये जो नीचे का x2 पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, उस वो अपना लेंथ को यहाँ से सपोर्ट करेगा। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना लोड सपोर्ट करेगा, यहाँ पे कितना लोड सपोर्ट करेगा और यहाँ पे कितना लोड सपोर्ट करेगा। फिर हम इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट कंसीडर करेंगे। ओके, तो पहले हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ। तो ये पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है, अभी कैलकुलेट करना है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है थोड़ा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ। ओके, तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, हम एल इफेक्टिव की जगह 1 mm कंसीडर करेंगे और बाकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ होता है 1 mm लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस 4.9 इंटू 108। कितना न्यूटन निकल के आता है आप लोग मुझे बताइए। न्यूटन, ये वैल्यू आ रहा है सबको। ओके, तो इस वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू के साथ अगर हम कोई भी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका स्ट्रेंथ मिलेगा। उस लेंथ का जो सपोर्ट, मतलब उस लेंथ कितना लोड को सपोर्ट कर पाएगा वो मिलेगा, मतलब 529.2। इसको हम याद रख लेते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ से वो कितना लोड सपोर्ट करेगा, 529.2 इंटू x1 लोड को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे कितना सपोर्ट करेगा, 529.2 इंटू 60 सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये लेंथ जो है वो 60 का है और ये लेंथ है x2 का, इसीलिए हम कंसीडर करेंगे 529.2 इंटू x2। ओके, किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए किस चीज में। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पोर्शन। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मतलब देखो, हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें अलग अलग लेंथ मालूम है। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला को देख लेते हैं। इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड इंटू पी क्यू, बेसिकली एल इफेक्टिव टी इंटू पी क्यू। हमने एल इफेक्टिव मतलब टोटल लेंथ कितना चाहिए वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, x1 एंड x2 का लेंथ निकालना है जो हमें मालूम नहीं। ओके, तो उस लेंथ को निकालने के लिए हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट के लिए हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स या जो भी लोड है उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस लेंथ के हिसाब से हम लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पर यूनिट लेंथ बोल दिया ना, पर यूनिट लेंथ हमने यहाँ पे कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव की जगह हमने 1 mm कंसीडर किया। 1 mm कंसीडर करने पर हमें पता चला कि 1 mm का वेल्ड इतना लोड उठाएगा, तो x1 mm का लोड कितना लोड उठाएगा, तो दिस वैल्यू इंटू x1। x2 लेंथ का लोड, मतलब x2 लेंथ का वेल्ड कितना लोड उठाएगा, दिस वैल्यू इंटू x2। एंड 60 mm लेंथ ऑफ वेल्ड कितना लोड उठाएगा, दिस वैल्यू इंटू 60। इस हिसाब से हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना ही मेरा काम है। अगर बिना पूछे आप लोग सोचोगे कि सर ने समझाया नहीं, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा ये चीज को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने लोड को तो यहाँ पे लिख दिया कि इतना इतना लोड सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं डिस्टेंस के हिसाब से कंसिडर करेंगे। ये 18.5 डिस्टेंस पे हमारा सेंट्रोइडल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड, हम इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट कैलकुलेट कंसिडर करेंगे। ओके, वी हैव टू कंसिडर कैलकुलेट मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। ओके, अगर इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें डिस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, यहाँ से सारा का सारा चीज को। ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड इस लोड के वजह से कितना मोमेंट होगा, ये लोड इंटू इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। जीरो डिस्टेंस है तो इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये लोड, ये जो लोड होगा वो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, दिस इंटू 60 का आधा 30, और ये कितना लोड सपोर्ट करेगा, दिस इंटू 60।
और ये कितना सपोर्ट करेगा 150 इंटू 10⁻³ इंटू 18.5। ओके, तो टेकिंग मोमेंट देखिए, इस मोमेंट की वजह से किस तरह का, इस लोड के वजह से किस तरह का मोमेंट क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से किस तरह का लोड क्रिएट होगा, मोमेंट क्रिएट होगा क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा इसके अराउंड। ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। थोड़ा सा इसको बता देते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। ये कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा उसी पॉइंट पे है, तो फिर भी हम लिख देंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट हील ऑफ द व्हील। तो इसको हील बोल रहे हैं ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट हील ऑफ द व्हील, हील ऑफ द एंगल। ओके, तो इस चीज को भी मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। ओके, तो एक साथ लिखते जाएंगे सारा का सारा चीज। पहला जो है वो है 529.2 इंटू x1, जो कि हील से कितना डिस्टेंस पर है, 0 डिस्टेंस पर है। इसको नहीं लिखने से भी हो जाता है, लेकिन आप लोगों को क्लियर याद रहे इसके लिए हम कंसीडर करते हैं। फिर 60 वाला पोर्शन के लिए लोड होगा 529.2 इंटू 60, और उसका डिस्टेंस क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 2। ओके, वो अपना सेंटर से होके सपोर्ट करेगा। प्लस हम कंसिडर करेंगे 529.2 इंटू x2, और वो कितना डिस्टेंस पर है हील से, 60 डिस्टेंस पर है। ओके, तो उस हिसाब से हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और इसको हम इक्वेट किसके साथ करेंगे, आप लोग देखिए, दूसरा वैल्यू कितना 150 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। इसका डिस्टेंस कितना बोला गया था कि सेंट्रोइडल एक्सिस लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18.5 मिलीमीटर फ्रॉम द हील ऑफ द एंगल। तो आप लोग देख रहे हो हील, हील को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज द हील पॉइंट। ओके, सो यहाँ से 18.5 mm डिस्टेंस पर हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस है। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, कभी भी कोई भी मेंबर के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं तो से ही उस लोड को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो भी ये 150 किलो न्यूटन का लोड होगा वो 18.5 mm पे अप्लाई होगा। ओके, तो हम इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे 18.5। सो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x2 का वैल्यू मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका कोई काम नहीं होगा, ये पार्ट हमारा ऑब्वियसली ये 0 है, इसको कैलकुलेशन में लाते नहीं है, हम बाकी पोर्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा x2 का जो वैल्यू होगा, x2 इज इक्वल टू, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो या वैल्यूज को पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, 10⁻³ इंटू 18.5 डिवाइडेड बाय 529.2 इंटू 60 इंटू 30। ओके, ओ सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, मैंने कुछ गलती करके इसको माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। this minus 529.2 into 60 into 30 divided by 529.2 into 60। हाँ, yes, ओके। सो बेसिकली ये वैल्यू कितना आता है, प्लीज कैलकुलेट करके बताइए मुझे भी। 53.396। सभी लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 57.396। सिर्फ यहाँ पे चौचांग कैलकुलेशन कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कभी मेरे साथ जो कैलकुलेट करते हैं, तो एटलीस्ट मुझे अपना कैलकुलेशन को, मतलब ये ऑब्वियसली कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो चेक करना हमेशा जरूरी होता है। 529.2। मैं स्टूडेंट्स में आप लोग को बार बार ये बोलता हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट करोगे एग्जाम में उतना ही टाइम पाओगे, और कैलकुलेशन में जितना आप लोग कंफ्यूज होंगे उतना ही आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अभी से कैलकुलेटर पे हाथ आजमाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो वैल्यू निकल के आता है 57.39। ओके, तो इस वैल्यू को 57.39, इस वैल्यू को हम कंसीडर कर देंगे 58 mm। ओके, x2 का वैल्यू अगर 58 mm हो जाएगा तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 57.39 को रहने देते हैं, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे। फिर हम कंसीडर करेंगे डियर फोर
x1 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया था, एक बार उस वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, 225 225 माइनस 57.39, 225 माइनस 57.39। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं हम। 167. 167 करेक्ट, ठीक है 167 करेक्ट, 167.6 mm। तो हम दोनों को वैल्यू को अभी अलग अलग से कंसीडर कर लेंगे, इसको हम अभी कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर let us provide x1 is equal to 168 mm, x2 is equal to 158 mm, 58। सो अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल ड्राइंग होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को ये ड्राइंग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग को आप लोगों को कंसीडर कर लेना है। कॉपी कर लेते हैं हम लोग, लास्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। या फिर कुछ कर देते हैं और कुछ चीजों को मिटा देते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप लोग को ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा ना। हमें इन सब वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट ये सब चीजों को, तो यहाँ पे ओके, तो वैल्यूज को लिख देंगे हम 168 mm, फिर ये तो 60 mm है ही, इसको नहीं लिखने से भी हो जाएगा लेकिन लिखते थे, और यहाँ पे 58। तो ओवरलैपिंग कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग 168 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, सो ये चीज को मैं लिख देता हूँ, मिनिमम ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड इक्वल टू 168 mm। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ओके, तो ये एक हो गया आप लोग का क्वेश्चन। याद रखिए ये लास्ट का जो ये ड्राइंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले का ड्राइंग जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये ड्रॉ किया था। तो ये ड्राइंग आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, ये ड्राइंग आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन इसको हमेशा करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो 2 मार्क्स तो डायरेक्टली डिडक्ट हो ही जाएगा, 2 मार्क्स से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को अल्टीमेटली पूरा का पूरा चीज एज एन इंजीनियर आप लोग को ड्रॉ करके ही दिखाना होता है। ओके, तो ड्राइंग को अच्छा बनाइए, या जो भी हो विजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वही है ना। ओके, इस तरह से हम 2D ड्राइंग ही बनाएंगे, 3D ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है हमारा। हम 2D ड्राइंग को दिखाएंगे, यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन देंगे ताकि पता चले कि ये अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है। ओके, सो दिस इज आवर एंगल। अगर कोई इस एंगल को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप लोग लिख दो IS है 60/60/10। हो गया, पूरा का पूरा गेम हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 150 किलो न्यूटन है, बाकी ये लाइन ड्रॉ करो ना करो कोई जरूरत नहीं। तो लाइन हो ना हो, लेकिन ये ड्राइंग आप लोग के लिए जरूरी है। तो जो भी अननेसेसरी चीज है इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये भी जरूरत है, जस्ट ये होने से हो गया, समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या समझा रहे हैं। ओके, सो दिस इज ए क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन में पूछ लीजिए।
Okay. ओके, वेरी गुड, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक टेंशन मेंबर के ऊपर ही है। टेंशन मेंबर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये एग्जैक्टली टेंशन मेंबर का क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम। इस जगह पे हम कंसिडर जो करने वाला है, यहाँ पे हम एक्चुअली जो हमारा स्लॉट वेल है, स्लॉट वेल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को देखिए और समझिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है एन ISLC 300, तो एक चैनल सेक्शन के बारे में बोला गया है। एट द रेट 331 न्यूटन पर मीटर is used to transmit a force of 650 kilonewton. The channel section is connected. The channel section is connected to a cassette plate. mm3. Design the fillet well. Design the fillet well. If the overlap is if the overlap is limited to 360 mm. 360 mm. Okay. Properties of ISLC. याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई भी IS कोड या स्टील टेबल लेके जाने नहीं देगा, तो प्रॉपर्टीज देना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं देगा तो ये कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आना है तो प्रॉपर्टीज का वैल्यू आप लोग को देना है, या वो लोग ऑलरेडी आप लोग को स्टील टेबल लेके जाने के लिए बोलेगा, जो कि वो अलाउ नहीं कर देगा। स्टील टेबल लेके जाने का मतलब है वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। उससे अच्छा एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ओके, तो क्रॉस सेक्शन 6.7। ओके, तो पहले हम एक अच्छा ड्राइंग देखते हैं, एक 2D में ड्राइंग को देखते हैं, फिर उसके बाद इस ड्राइंग को हम 3D में समझते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने एंगल सेक्शन को कंसीडर किया था, उसी तरीके से चैनल सेक्शन में भी हमें कुछ इस तरह से कंसीडर करना होता है वैल्यूज को। चैनल सेक्शन के लिए ओके, तो एक चैनल सेक्शन को 2D में ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग ज्यादा कंसीडर कर लिया है, जो
हाउएवर ये ओवरलैपिंग जस्ट 360 का ही है, मतलब ये जितना होगा उससे थोड़ा सा ही ज्यादा होना चाहिए। ओके, ओवरलैपिंग थोड़ा मैंने ज्यादा कंसीडर कर दिया, मतलब ठीक है, इसको ओवरलैपिंग को तो कम कर देता हूँ, तो ओवरलैपिंग को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये 360 का है, तो मैं ये वैल्यू इस तरह से कंसीडर करूंगा तो देखने में थोड़ा सा छोटा हो जाता है सारा का सारा चीज, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके कंसीडर करते हैं। अरे यार, सिलेक्ट हो जा। इस चीज को थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा ये 360 है, और हमें अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम कंसीडर करेंगे एज 360। ये ओवरलैपिंग हमारा 360 के लिए है। और फिर आईएसएल से 300 बोला गया है, इसका मतलब ये जो ये वाला पोर्शन का जो डिस्टेंस होगा, ये 300। ठीक है, अब हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि ये आईएसएल से कितना लोड लेगा। ओके, और हम जो भी वेल प्रोवाइड करने वाले हैं वो कितना लोड सपोर्ट करेगा। ओके, तो हमें बहुत सारे चीजों को देखना है, मतलब तीन चार चीजों को पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा जो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा वेल साइज को। तो लेट अस कंसीडर द वेल साइज फर्स्ट। क्या आप लोगों को मुझे वो 3D ड्राइंग करके देना है? अगर देना है तो प्लीज बता दीजिए, मैं बना देता हूँ, अगर नहीं देना है तो नहीं दूंगा। सर बना दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए मुझे मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, मुझे तब अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करने पर ही अच्छा लगेगा। ओके, तो 3D ड्राइंग को इस तरह से देखते हैं हम। ओके, और हमारा जो वेवलेंथ कनेक्शन है वो इस तरह से ऐसे जा सकते, तो हम इस जगह से कंसीडर करेंगे। तो कासेट प्लेट में ये इस तरह से कनेक्टेड है, और
हमें क्या करना है कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कितना लोड करेगा। तो क्वेश्चन है ये कितना लोड सपोर्ट करेगा, और इस लोड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कितना वेल्डिंग हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस जगह पे कितना वेल्डिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो भी वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे क्या वो सफिशियंट होगा। लेंथ, जो लेंथ हमारे पास अवेलेबल है कि यहाँ पे जो लेंथ है 360, यहाँ पे लेंथ है 300 और यहाँ पे भी 360, क्या वो टोटल लेंथ हमारे लिए एनफ है, उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम काट आउट बना के यहाँ पे स्लॉट वेल्ड करेंगे। तो वो स्लॉट वेल्ड का साइजेस कितना होगा वो हमें देखना है। ओके, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, गंदा दिखना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। तो समझने के लिए ये ड्राइंग को फिर से मैं यहाँ पे एडिट करता रहूंगा, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इस चीज को हमने देख लिया। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये चैनल सेक्शन कितना लोड उठाएगा। ओके, तो लोड कैपेसिटी ऑफ द चैनल सेक्शन, स्टेप वन में हम उसको देखेंगे। तो कोई भी सेक्शन का अगर लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करना होता है तो आप लोग जानते हो उस चैनल से उस सेक्शन को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा। हमें उसका परमिसिबल स्ट्रेस, टियरिंग स्ट्रेस को कंसीडर करना होता है, प्लस उसके साथ साथ हमें कंसीडर करना होता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय सॉरी चैनल सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता नहीं है, लेकिन इसीलिए हमें यहाँ पे दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 4211 mm² एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लोड कैपेसिटी ऑफ द चैनल सेक्शन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया into permissible tearing stress। अब परमिसिबल टियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू मैंने आप लोगों को बोला था वो होना चाहिए 0.6 ऑफ FY। ओके, FY फॉर ए माइल्ड स्टील, क्योंकि ये माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, वो 250 होता है। और 0.6 ऑफ 250 कितना निकल के आएगा, 150 आना चाहिए। तो ये 150 है, 150 न्यूटन पर mm²। ये परमिसिबल टियरिंग स्ट्रेस है जो हमें दिया भी दे सकता है, नहीं देने पर 150 डायरेक्टली कंसीडर करना है। ये है उसका फॉर्मूला। तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख देता हूँ, वो है 4211 mm² पे है। ओके, और ये वैल्यू है 150 न्यूटन पर mm²। और ये पूरा चीज को मैं अगर 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे किलो न्यूटन पे वैल्यू मिलेगा। कितना आएगा मुझे बताइए कोई। 631.65 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। देखिए आप लोगों का अभी ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, 631.65 इंटू 10⁻³ किलो। सुजंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी ये मैसेजेस को या आंसर को दो तो डायरेक्ट मैसेज की जगह एवरीवन के लिए दे दो। ओके, तो ठीक है, इतना लोड को हमें सपोर्ट करना है, इतना लोड को हमें सपोर्ट करना है। अगर इतना लोड को सपोर्ट करना है तो इसको अभी साइड रखते हैं। अभी हमें नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि इसमें वेल्डिंग प्रोवाइड करना होगा ना, तो इस वेल्डिंग का कितना साइज हम प्रोवाइड करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में साइज ऑफ वेल्डिंग को कंसिडर करेंगे। स्टेप 2, साइज ऑफ वेल्डिंग। अब देखिए साइज ऑफ वेल्डिंग का दो पार्ट होता है, एक तो होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्डिंग और एक होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग। तो ए में लिख देते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्डिंग। देखिए, तो ये जो है इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैंज। इस पार्ट को हम बोलते हैं वेल्ड, और ये भी हमारा फ्लैंज है।
यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दिए गए। फ्लैंज का जो थिकनेस है 11.6 है, वेब का थिकनेस जो है 6.7 है। तो बेसिकली वेब थिकनेस को कंसीडर करेंगे क्योंकि थिनर मेंबर को कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारा प्रोवाइडेड वैल्यू के हिसाब से ये जो थिकनेस है ये है 6.7 mm, और यहाँ पे जो आप लोगों को थिकनेस मिल रहा है ये है आप लोग का 11.6 mm। तो ये तो कोई भी कनेक्टेड पार्ट में नहीं है, ये या वेल्डिंग होगा तो इस जगह पे होगा। वेल्डिंग को हम अगर कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली वेल्डिंग को हम कंसीडर करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे वेल्डिंग को कंसीडर करेंगे, और इस जगह पे हम कंसीडर करेंगे वेल्डिंग को। ओके, तो यहाँ पे वेल्डिंग कंसीडर करेंगे तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा वेल्डिंग का थिकनेस, और बाकी एक वेल्डिंग यहाँ पे भी होगा जो हमें दिखाई नहीं देता, नीचे की तरफ होगा वो वेल्डिंग। ओके, तो इस तरह से वेल्डिंग होगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा वेल्डिंग का मिनिमम साइज कितना होना है। 6.7 mm थिकनेस के लिए हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्डिंग को कितना कंसीडर करना है, कोई मुझे बताइए। मिनिमम साइज ऑफ वेल्डिंग कितना होना चाहिए अगर हमारा मेंबर थिकनेस 6.7? तो मैंने ऑलरेडी बोला अप टू 10 mm के लिए होना चाहिए 3 mm। तो इसके लिए हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल होगा 3 mm। नंबर बी हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्डिंग जनरली होता है थिकनेस ऑफ द मेंबर। ओके, मेंबर थिकनेस -1.5 इन जनरल। ये होता है इन जनरल होता है मेंबर थिकनेस -1.5 विथ एन एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है मैं यहाँ पे आज लिख देता हूँ। एक्सेप्शन क्या होता है, वो एक्सेप्शन है कुछ इस तरह से हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन है if the member size is less than 6 mm। तो जो हमारा साइज को कंसिडर करना होता है, साइज इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द मेंबर हो जाता है। हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे थिकनेस कितना है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6.7 है तो बाल बाल बच गए, हमें 1.5 माइनस करना पड़ेगा 6.7 से। ओके, ये चीज यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए किसी कारण से अगर 6.7 के से छोटा हो जाता है तो हमें इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। Therefore मैक्सिमम साइज ऑफ वेल यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके मिलेगा 6.7 -1.5। तो ये हो जाएगा 5.2। तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, therefore let us provide and well size equal to 5 mm। तो अगर 5 mm का वेल साइज हो जाएगा तो थ्रोट थिकनेस 5 0.7 into 5, ये हो जाएगा 3.5 mm थ्रोट थिकनेस। ओके, तो थ्रोट थिकनेस हमें मिल गया। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3, तो कितना रिक्वायर्ड लेंथ होगा कि 3.5 mm थ्रोट थिकनेस होने पर हमें 631.67 किलोन्यूटन लोड को सपोर्ट करने के लिए कितना लेंथ की जरूरत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्डिंग। वो किस तरह से कंसीडर करेंगे, अल्टीमेटली हमें कंसीडर करना पड़ेगा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्डिंग इज नो अदर देन एल इफेक्टिव
is equal to load divided by throat thickness into PQ. ओके ये हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू पहले हम देख लेते हैं, लोड कितना आया था 631.65। थ्रोट थिकनेस का वैल्यू हमारा, थ्रोट थिकनेस का वैल्यू कितना आ जाता है 3.5, और PQ का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 108 होगा। तो लेते हैं कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी, इसका वैल्यू कितना आता है। 1671 1671, वेरी गुड। 1671 हमारा थिकनेस, ये लेंथ रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम देखेंगे अवेलेबल लेंथ कितना है। अवेलेबल लेंथ या लेंथ अवेलेबल इज इक्वल टू, ये देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये लेंथ 360 का है, ये 300 का है, और ये 360 का है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है 360, 300, 360। तो हमारा टोटल लेंथ है ये 360 प्लस 300 प्लस 360। तो हमारा जो अवेलेबल है 1020 है। ओके, तो ये अवेलेबल है, ये रिक्वायर्ड है। तो हमारा एडिशनल कितना लेंथ हमें चाहिए उसको हम कंसीडर करते हैं। Therefore, (1671) divided minus 1020. तो 651 एडिशनल लेंथ हमें चाहिए। ये 651 एडिशनल लेंथ हमें चाहिए। तो इस 651 को हमें किस तरह से प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें स्लॉट के थ्रू प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर एक स्लॉट प्रोवाइड करते हैं तो दो लेंथ मिलता है, जितना लेंथ का स्लॉट प्रोवाइड करेंगे तो उसका डबल लेंथ मिलेगा वेल्डिंग का। अगर दो कंसीडर करेंगे तो 4 मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। ओके, तो मैं इस ड्राइंग को फिर से लेके आता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को समझाने के लिए आसान होगा। तो इस ड्राइंग को मैं लेके आता हूँ। चलो ड्राइंग को लेते हैं हम यहाँ पे, आप ओके। तो अगर ये आपका मेंबर है, और यहाँ पे समझ लीजिए आप लोगों का, और यहाँ पे आप लोगों का रेस्ट्रिक्शन है, इतना ही ओवरलैप आप लोग कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, समझ लीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको यहाँ पे स्लॉट प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी हम स्लॉट प्रोवाइड करेंगे। याद रखना है, स्लॉट का जो एंड होता है वो हमेशा राउंडेड होना पड़ेगा। तो अगर दो स्लॉट प्रोवाइड करेंगे, तो अगर L1 लेंथ का स्लॉट प्रोवाइड किया, तो हमारा टोटल वेल लेंथ कितना मिलेगा, यहाँ पे L1, यहाँ पे L1, दो, यहाँ पे L1, यहाँ पे L1, टोटल 4 स्लॉट्स हमें मिल जाएगा, 4 लेंथ हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे प्रोवाइडिंग 2 स्लॉट्स, तो जो हमारा लेंथ ऑफ स्लॉट होगा उसको इस चीज को 4 से डिवाइड कर देने पर हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज को मैं लिख देता हूँ, ये चीज को पहले साइड में लेके आते हैं। Let us provide two slots. Length of slots required is equal to 651 divided by 4. So 162.75, 162.75 मिनिमम इतना लेंथ का प्रोवाइड करना है। ओके, तो हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, ये चीज को इस तरह से लिख देंगे, therefore let us provide slots. Okay, let us provide two slots of length 165 mm each. 165 mm each अगर हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो लेंथ अवेलेबल बन जाएगा, therefore new length available is equal to, हमारा जो पहले का वैल्यू था वो था 360 प्लस 300 प्लस 360 प्लस हमें कंसीडर करना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ 165, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1681, which is greater than required length कितना था 1671 1680, sorry 1680, which is greater than 1671. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, hence say। तो यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते, अभी हमारा जो स्लॉट्स का जो थिकनेस है, डिस्टेंसेस है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो जो स्लॉट वेल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो स्लॉट वेल्डिंग का जो थिकनेस होता है, विड्थ ऑफ डायमीटर होता है, ठीक है। तो इस ड्राइंग को हम यहाँ से अच्छे से लेके आते हैं और इस ड्राइंग में हम सारा का सारा चीज को डालने की कोशिश करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये बाकी चीज को थोड़ा सा बड़ा। ओके, तो जो भी स्लॉट प्रोवाइड करेंगे उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे।
एक चीज यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, वो है कि जो स्लॉट का जो एंड होता है उसको सर्कुलर होना चाहिए, हमेशा सर्कुलर सेक्शन का होना चाहिए। स्लॉट का जो एंड होना है उसको सर्कुलर सेक्शन। ऑब्वियसली आप लोग हैंड ड्राइंग करोगे तो आप लोगों का ज्यादा कंट्रोल होगा मुझसे। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग जरूरी है हमारे। तो इस तरह से दिखाई देगा हमारा स्लॉट्स। ओके, अब जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग के लिए हमको दूसरा कैलकुलेशन तो करेंगे। हमें पहले समझना है कि ये लेंथ कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंसेस कितना होना चाहिए। डायमीटर एंड डिस्टेंसेस वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये एक पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और सिमिलरली हमें ये पूरा चीज को सिमेट्रिक रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे लिए सिमिलरली। ओके, तो इस चीज को किस तरह से डिवाइड करेंगे हम, कैलकुलेशन को पहले हम देख लेते हैं हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू क्या क्या दिया गया है, इस चीज के बारे में मैं बता देता हूँ। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से ये चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये जो थिकनेस है उसको हम बोलते हैं विड्थ और डायमीटर ऑफ स्लॉट। इसका वैल्यू जो होना चाहिए, जिस जगह पे जिस पार्ट में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेब में कंसिडर कर रहे हैं ना, उसका होना चाहिए उसका 3 टाइम्स या 25 mm। ओके, तो नॉट लेस देन, ये चीज का वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन ओके, मैक्सिमम ऑफ किस किस के वैल्यू, थिकनेस इंटू 3 और 25। अब थिकनेस का वैल्यू के हिसाब से थिकनेस इंटू 3, थिकनेस का वैल्यू इस जगह को हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे इस चीज को हम वेब बोलते हैं। वेब का थिकनेस कितना दिया गया था, 6.7 mm। तो 6.7 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6.7 इंटू 3 कितना आता है उसको देख लीजिए। 20.1, 20.1। तो 20.1, 25 इनमें से जो भी ग्रेटर होगा 25। तो 25 से छोटा नहीं होना है, उससे ज्यादा दे सकते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू हम 25 से ज्यादा देंगे। फिर या इस ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसके लिए क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें दिया गया है ये पोर्शन के लिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये पोर्शन या ये पोर्शन, इन दोनों पोर्शन के लिए हमें क्या बोला गया है, इसको हम बोलते हैं आ, ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम एज टू प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट। ओके, शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ, दो इसका मैक्सिमम हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द प्लेट, 2 टाइम्स द थिकनेस, बेसिकली 2 टाइम्स द थिकनेस जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू 6.7। या फिर हमें इसको कंपेयर करना है और हमें कंसिडर करना है, हाँ सिर्फ यही है, यही है, जस्ट नॉट मैक्सिमम, जस्ट यही वैल्यू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को मैं फिर से यहाँ पे दे देता हूँ। तो नॉट मैक्सिमम, हमें ये वैल्यू होना ही चाहिए 2.7।
not less than 2 into thickness, which is equal to 2 into 6.7. 2 into 6.7 बेसिकली कितना हो जाएगा? 13.4 mm। तो हमारे पास अवेलेबल बहुत जगह है, तो हमें देखा गया, हमें बोला गया कि इसका वैल्यू 25 से ज्यादा होना है और इसका वैल्यू हमारा होना चाहिए 13.4 से ज्यादा, इसका इसका और इसका। ओके, तो पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस को 25 से ज्यादा होना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं 30 नहीं, हम कंसीडर कर लेते हैं 50-50 कंसीडर कर सकते हैं, या 25-25 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी मिनिमम है शुड नॉट बी लेस देन 25 हो रहा है ना, तो लेट अस कंसीडर 35 कंसीडर कर लेते हैं। ये 35 है, ये 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 300। 35 ले लिया तो हमारा कितना रह गया? 300 माइनस 35 माइनस 35 कितना रह जाएगा उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास रह जाएगा 230, तो हमारे पास रह जाएगा 230 रह जाएगा। ओके, तो 230 को हमें तीन अलग अलग पार्ट में कंसीडर करना है। समझ लीजिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 230 से 230 इसको कंसीडर कर लेंगे, तो इसको हम 50 कंसीडर कर लेते हैं। 230 से अगर मैंने फिर से 50 माइनस कर दिया तो हमारे पास रह जाएगा 180। अब 180 को इक्वली दो पार्ट कर लेते हैं, तो 180 को अगर इक्वली टू पार्ट करेंगे तो एक 90 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 mm और ये डिस्टेंस भी बन जाएगा 90 mm। तो सभी में इस तरह से वैल्यूज को हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आप लोग को ये डिस्टेंसेस को दिखा देने से हो गया, और एक चीज और एक डिस्टेंस को आप लोग को ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। ओके, ये डिस्टेंस को आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ये स्लॉट लेंथ का जो वैल्यू होगा हमारा, इस चीज को लिखना है 165। ओके, तो इस तरह से हमें इस तरह से स्लॉट वेल्थ प्रोवाइड करना है। तो स्लॉट वेल्थ को इस तरह से प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को एक चीज को दिखा देता हूँ। ये ओपनिंग रह जाएगा। ओके, ये ओपनिंग बन जाएगा, और जो हम वेल्थ को प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा वेल्थ प्रोवाइडेड होगा वो इस जगह से वेल्थ प्रोवाइड होगा। वेल्थ यहाँ पे आएगा, वेल्थ यहाँ पे आएगा, वेल्थ फिर इस तरह से अंदर से जाएगा। मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉइंग को कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से कोई कलर या इस तरह से कोई वेल्डिंग के लिए देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जस्ट डॉटेड लाइन या कोई शेडिंग, मतलब इस तरह से कुछ लाइन को ड्रॉ कर देने से हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेल्डिंग को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरह से वेल्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा हमारा, और ये वेल्डिंग इस तरह से प्रोवाइड करने पर हमें मिल जाएगा टोटल रिक्वायर्ड लेंथ मोर देन द लेंथ, टोटल अवेलेबल लेंथ मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझे। ओके, मैं आप लोग को एक बात पूछता हूँ, क्या आप लोग को ये कैलकुलेशन बोरिंग लगता है? लेकिन याद रखिए एग्जाम में अगर आएगा तो बोरिंग का आंसर भी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और एक न्यूमेरिकल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड पोर्शन से। A member of roof truss consists of two angles, two angles, ISA 80 by 50 by 6 placed back to back. Placed back to back on both sides of an 8 mm thick gusset plate. It carries direct load of 71 kilonewton. This direct load 71 kilonewton. Determine number of power driven field rivet required. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है टू IS एंगल इस तरह से साइड ऑफ 8 mm की गसेट प्लेट का 8 mm की गसेट प्लेट का दोनों एंड में इस तरह से दो एंगल सेक्शन लगाया गया है और हमें पूछा गया है कि ये डायरेक्ट लोड जो है 71 किलो न्यूटन उठाता है। ओके, ओके, तो देख लेते हैं इसको किस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए पहले हम ड्राइंग को देख लेते हैं, हमें क्रॉस सेक्शनल वैल्यू चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ये हो जाए क्या समझ लीजिए हमारा गसेट प्लेट और गसेट प्लेट के दोनों तरफ हमारे पास दो एंगल को कंसीडर करना है। एक है 80 बाय 50 बाय 6। ओके, तो ये हमारा मेंबर और मेंबर का साइजेस के बारे में हम देख लेते हैं। जिससे ये है 50 mm, फिर ये है हमारा 6 mm और सिमिलरली इस जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो है 8। हमेशा लॉन्गर लेग को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा उसूल जैसे समझ लीजिए, ये हमारा उसूल है कि हमेशा लॉन्गर लेग को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करना। क्योंकि अगर लॉन्गर लेग को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसीलिए हमें लॉन्गर लेग को कंसीडर करना है। कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इस चीज को यहाँ पे डाल देता हूँ, एक लेग यहाँ पे, फिर दूसरा पार्ट दूसरे जगह पे कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करेंगे पेस्ट। लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको और इसको
तो इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा। ओके, अगर इस तरह से लगाते हैं हम वैल्यू को, इस तरह से हम लगाते हैं तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ वेल कितना, नंबर ऑफ रिजेक्ट कितना चाहिए। ओके, 80 mm वाला पोर्शन है, इसको और एक साइड व्यू से होके हम देख सकते हैं। इसको साइड व्यू के हिसाब से देखने पर देखना है तो इसको थोड़ा सा अलग से ले, साइड को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। ओके, तो इस तरह से होगा। अभी हमें देखना है यहाँ पे कितना रिवेट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और किस तरह से हम रिवेट को प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। लेकिन पहले हमें देखना है नंबर ऑफ रिवेट को हमें कंसीडर करना है, किस तरह का रिवेट चाहिए, पावर रिवेट। तो कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखना है पहले 71 किलो न्यूटन है और हमारा रिवेट जो होगा, रिवेट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। रिवेट जो होगा वो रिवेट को हमें इस जगह पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ओके, रिवेट को इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली रिवेट का अपना अपना हेड होगा जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ओके, तो ऑब्वियसली देखने में ये इस तरह से बन जाएगा अगर मैं रिवेट को इस तरह से कंसीडर करता हूँ। ओके, इस तरह से रिवेट होगा। जो भी हो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डबल शेयर आने वाला है। एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पावर ड्रिवन, पावर ड्रिवन फॉर पावर ड्रिवन रिवेट। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे शियर स्ट्रेस। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट के लिए शियर स्ट्रेस होते हैं 90 न्यूटन पर mm²। और इसके साथ हमें चाहिए टेंशन, सॉरी, बियरिंग स्ट्रेस। वो होगा 270 न्यूटन पर mm²। शेयर स्ट्रेस को किससे समझाते हैं, ताऊ VF से समझाते हैं और बियरिंग स्ट्रेस को सिग्मा PB हमसे बताते हैं। तो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे वैल्यू को और अल्टीमेटली इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हमें नंबर ऑफ रिजेक्ट्स कितना चाहिए होगा। ओके, टोटल लोड कितना सपोर्ट करना है, 71 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिवेट वैल्यू। ओके, और उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि साइज ऑफ रिवेट कंसिडर क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज तो हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंसेज है,
ये जो डिस्टेंस है ये है 6 mm। सिमिलरली ये भी 6 mm है। ये कोई दो बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते। और ये कितना बोला गया है हमें, ये वैल्यू हमें बोला गया है कि ये 8 mm। तो 8 mm और 6 mm में से हमें 8 mm को कंसीडर करना पड़ेगा जब हमें रिवेट का साइज चाहिए। तो साइज ऑफ रिवेट, तो ये चीज को मैं लिख देता हूँ इस तरह से। साइज ऑफ रिवेट नहीं बोलेंगे, डायमीटर ऑफ रिवेट बोलेंगे तो ज्यादा करेक्ट होगा। डायमीटर ऑफ रिवेट is determined from Unwin's formula. Unwin's formula, तो वो क्या है, 6√p होता है। और ये वैल्यू होगा 6√p का वैल्यू होगा यहाँ पे 8। तो वैल्यू कितना निकल के आते हैं हम देख लेते हैं। कितना आएगा? 16.9 आ रहा है। 16.9 आ रहा है। ओके, 16.9 है ना। तो इसका मतलब नियर बाय जो स्टैंडर्ड साइज है, आइडर को 16 mm हम कंसीडर कर सकते हैं या 18 mm हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो 16 mm इतना अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, 18 mm ज्यादा अवेलेबिलिटी होता है। तो हम लेटेस्ट इसको हम कंसीडर करेंगे। देयरफॉर लेटेस्ट अडॉप्ट, लेटेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड 18 mm आया। तो हमें अभी चाहिए रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू हमारा कितना होगा? रिवेट वैल्यू के लिए हमें दो चीज को देखना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ को किस तरह से कंसीडर किया जाता था? हमें कंसीडर करता था थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट इनटू डी नॉट, डायमीटर को हमें कंसीडर करना था, और बियरिंग स्ट्रेस। ओके, तो थिकनेस हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? थिकनेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा 6+6 और 8 इन दोनों के बीच में जो भी थिनर प्लेट है। 6+6 मतलब 12, 12 और 8 के बीच में थिनर होगा 8, तो हम इसमें कंसीडर करेंगे 8। बी नॉट का वैल्यू कितना होगा? अगर 18 कंसीडर कर रहे हैं तो 1.5 ऐड करेंगे, 19.5 हो जाएगा। और ये वैल्यू है 270। तो इस पूरा चीज को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, पूरा चीज को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 42.1। 42.12। यस, यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। ओके, फिर हमें शियर स्ट्रेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, शियर स्ट्रेंथ टाउ वीएफ परमिसिबल स्ट्रेस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना शियर प्लेन है, दो जगह पे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी पूछ सकता है और यहाँ पे भी पूछ सकता है। तो बेसिकली दो शियर प्लेन आएगा, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने गलत वैल्यू को पहले लिखा है, इसको नहीं लिखा है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे 2 इंटू π/4 इंटू डी नॉट स्क्वायर। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। दो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा ताउ वीआर, ये हम कंसीडर करेंगे। 2 इंटू π/4 इंटू डी नॉट का वैल्यू है 19.5 स्क्वायर, और ताउ वीआर का वैल्यू कितना हमने कंसीडर किया? 9।
और ये पूरा चीज को हमें डिवाइड करना है 1000 से। तो ये वैल्यू आ जाएगा 53.75 किलोमीटर। यस, 53.75 किलोमीटर। सो करेक्ट है आपका। तो अल्टीमेटली इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वही हमारा रिजेक्ट वैल्यू होगा। ओके, इन दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू है वही हमारा रिजेक्ट वैल्यू होगा। फोर्टी टू पॉइंट वन टू किलोमीटर। तो 42.12 किलो न्यूटन अगर हमारा रिजेक्ट वैल्यू है तो हमें नंबर ऑफ रिजेक्ट चाहिए। तो हमारा टोटल लोड कितना था? 71 किलोमीटर। तो ये वैल्यू बन जाएगा 1.68 बेसिकली 2 numbers. Okay, therefore we require 2 numbers of rivers. ओके, तो ये होगा हमारा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर 2 नंबर ऑफ रिबेट्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो हमारा अगर क्वेश्चन है कि 2 नंबर ऑफ रिबेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो जो हमारा स्पेसिंग, जो हमारा ये ओवरलैपिंग कितना हो। तो 2 अगर हम नंबर ऑफ रिबेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग कितना चाहिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। Overlapping required is equal to 2e plus p। ओके, p मतलब एक पिच और 2 एज डिस्टेंस चाहिए। p मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 1.5 ऑफ b और p मिनिमम वैल्यू होता है 2.5 ऑफ d नॉट। 1.5 इंटू डी का वैल्यू अगर हम कंसिडर करेंगे, डी का वैल्यू कितना होगा हमारा 18, तो ये हो जाता है 27 और ये 19.5 कंसिडर करेंगे तो ये होगा 48.75। तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 2 इंटू 27 प्लस 48.75, तो ये हो जाएगा 102.75। ओके, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं 105। तो हमें मिनिमम ओवरलैपिंग 105 mm प्रोवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो।
नो डाउट? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वोल्टिंग को देखेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को करना है, तो ऑब्वियसली हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा आप लोगों का यहाँ पे। ज्यादा तो क्योंकि एक्सप्लेन करने पर ज्यादा तो नंबर्स कर नहीं सकते, लेकिन कोई भी डाउट हो आप लोगों का, आप लोग जब हमेशा पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन करने पर आप लोग को आंसर निकलने में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा, ठीक है? तो आज यहाँ पे ही रुक जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। Good.